Okay, now screen is visible and voice is audible. Please tell fast. Yes, ma'am. Yes. Okay, now, so this is the next topic of the chapter, that is the structure of the atmosphere. So today we will discuss about the structure of atmosphere, means the different layers of the atmosphere, okay, and what type of phenomena take place in these layer of the atmosphere and how they are differ from each other. Okay, now now you can see. Okay, so now you can see in the picture we are having four different layers: the troposphere, stratosphere, mesosphere, and the thermosphere. Okay, now what you have to learn in these layers, the important thing is that you have to learn कि इतनी height जो है, what is the height of all these layers and how they are differing from each other. Okay, in the last I have told you, last class I have told you कि जो different layers हैं, they are differ from each other, especially on the basis of their temperature, उनका temperature और उनकी density. Okay, on the base of the temperature, basically they are differ from each other. So we are having four different layers. Okay, so you can see in the picture troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere. Now what you have to learn, that what is the hmm, Hmm. What is the height? Okay, in this picture you can learn the height of all these sphere. Troposphere में height क्या है? 10 किलोमीटर जो है. Stratosphere that extend from 10 to 50 kilometer. Then you are having the mesosphere that extend from 50 to 80 kilometer, and then thermosphere from 80 to 700 kilometer. This you have to learn the height of each layer. Then exosphere having the height 700 to 10,000 kilometers. So this is the height of different layers of the atmosphere. Now in this picture you can see कि different layers जो हैं, कौन कौन सी चीज जो, like you can see in the troposphere. Okay, troposphere में जो weather changes होते हैं, इसको changing sphere भी बोलते हैं troposphere को. That's why क्योंकि इसमें जो भी weather changes, जो weather phenomena है, weather changes हैं, it all takes place in the troposphere. Okay, then you are having the stratosphere, जो हमारे jet planes हैं, aircraft, जो फ्लाई प्लेन्स वगैरह हैं वो फ्लाई करते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में. ओके, देन यू आर हैविंग द मीजोस्फेयर, जो वेदर बैलून्स वगैरह हैं वो यूजुअली इसमें करते हैं, मीजोस्फेयर में फ्लाई करेंगे. एंड देन यू आर हैविंग द थर्मोस्फेयर, जो सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं, मीटियोर्स जो होते हैं, मीटियोर्स जो ब्रेक होते हैं, दैट ऑकर्स इन द थर्मोस्फेयर. एंड जो आपके रॉकेट्स वगैरह, इन दिस पिक्चर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस किस सफियर में, किस किस लेयर में क्या है. बट मेन इंपॉर्टेंट इज द स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पे हमारे जेट प्लेन्स जो हैं, सुपरसोनिक जेट प्लेन्स हैं, प्लेन्स जो हैं फ्लाई करते हैं. ओके, एंड देन एक्सोस्फेयर के बाद आपका क्या आ जाता है, स्पेस, और इसमें जो आपके रॉकेट्स वगैरह हैं वो आपके एक्सोस्फेयर में चलते हैं. Okay, so this is basically the idea of the different layers of the atmosphere. Now height is also there, the 10 kilometer, this you have to learn. Okay, 10 kilometer है, then 50 kilometer, so you can say that ट्रोपोस्फेयर आपका 10 किलोमीटर तक है. 10 to 50 में आपका आ जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, देन 50 से एक्सटेंड करेगा 80 तक आपका मीजोस्फेयर, एंड 80 टू आगे जो आपका फर्दर 1000 तक चलेगा, दैट इज द अप टू द एक्सोस्फेयर. ओके, दिस हाइट यू हैव टू लर्न. दिस ऑलरेडी यू हैव सीन कि एटमॉस्फेयर क्या है. एटमॉस्फेयर में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द अर्थ. सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि जो गैसेस प्रेजेंट हैं, यू कैन से कि जो हमारी सबसे फर्स्ट लेयर है, दैट इज़ द ट्रोपोस्फेयर, वो ज़्यादा डेंस है, हैविंग द मोर टेम्परेचर. उसमें एक रीज़न ये है, डेंस है मीन ज़्यादा गैसेज हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है इट इज़ हैविंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ. ओके, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट्स वाई atmosphere, the troposphere having the gases. Okay, the life prevail on the earth only because of the present atmosphere. ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि लाइफ अर्थ पे है ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइफ जो होगी इट इज़ नॉट पॉसिबल. यू नो कि ऑक्सीजन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इंपॉर्टेंट है. यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th में कि जो भी फिनोमिनाज होते हैं, ऑक्सीजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपकी एटीपी फॉर्मेशन होती है, that all takes place due to the oxygen. So that's why oxygen is very very important. Then carbon dioxide in the same way is very important for the plants.
ओके। प्लांट्स में जो भी फिनोमिना है, जो भी मैकेनिज्म्स हैं डेट, जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, that takes place due to the carbon dioxide. So that way gases are very important. So you can say कि atmosphere is very very important. Without atmosphere, without a particular atmosphere, we can't survive. Okay. ओके, सो एटमॉस्फेयर में एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक तो वो गैसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकंड इम्पोर्टेंट है कि ओजोन लेयर। ओके, ओजोन लेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये आपको सेपरेटली दिस यू हैव टू स्टडी अबाउट द ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर में how the formation of ozone layer takes place, how the ozone gets depleted, and what are the measures। जो different, मैंने आपको पहले भी बोला था, जो different type के protocols हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कोटो प्रोटोकॉल है, that you have to study, it is very very important। अगर आपके टॉपिक में नहीं भी है तो ओजोन लेयर you have to study। okay, so just remember this thing कि each and everything you have to study about the ozone layer, the formation of ozone layer, the depletion of the ozone layer, जो different organization जैसे IUCN है, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, मेजर्स हैं टू प्रिवेंट द ओजोन लेयर, ओके, टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, दैट यू हैव टू स्टडी। एंड अल्ट्रावायलेट रेज इज वेरी हार्मफुल, इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द अर्थ। सो ओजोन लेयर जो है प्रोटेक्टर है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। Okay, now you are having the four different layers that thoroughly we will study, but all the layers are differ from each other, already I have told you, with the on the basis of their temperature। So different layer में जो temperature होगा वो vary करेगा। Okay, so temperature is showing the variation now। So first layer is troposphere। Okay, उसमें this is the lower layer of the atmosphere, and uh, और एंड लेयर, एंड दिस इज द लेयर दैट इज क्लोज टू द अर्थ। ओके, इस लेयर को आप बोलते हो ट्रोपोस्फियर। दिस इज द वर्ड, नॉट वर्ड, द वर्ड ट्रोपोस्फियर इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रोपोस मीन्स टू टर्न। अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एंड सीजन्स द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज वेरी, जो ट्रोपोस्फियर की हाइट है वो वेरी करेगी इन द पोल्स एंड द इक्वेटर। ऐसे भी सीजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो भी वेदर फिनोमिनाज हैं, आई हैव टोल्ड यू कि जो भी वेदर चेंजेस हैं, यू कैन सी कि जो भी क्लाउड फॉर्मेशन है, रेन, स्नो, हेल स्टॉर्म, लाइटनिंग, थंडर, ओके, ऑल द वेदर फिनोमिना जो है, वेदर चेंजेस हैं, दैट टेक्स प्लेस इन द ozone, sorry, troposphere only। So this is the most important layer of the atmosphere, because all type of weather changes takes place in this layer, and air never remains static। इसमें आप देखोगे कि air कभी भी static नहीं है। static means कि still नहीं है, dynamic है, changes होती रहती है, changes हैं। okay, so that's why इस layer को आप बोलते हो changing sphere। okay, changing, tropo का mean ही है to turn or to change। okay, so it is written here, it means to turn or to change। so troposphere is called as a changing layer। why it is called as changing layer? क्योंकि जो इसमें एयर है वो कभी भी स्टैटिक नहीं है, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। दैट्स वाई जो भी वेदर फिनोमिनाज हैं वो भी सारे इसमें चेंजेस, वेदर की ऑल काइंड ऑफ वेदर चेंजेस जो हैं वो टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज द चेंजिंग स्फीयर और द ट्रोपोस्फियर। एंड हाइट, इसकी हाइट जो है वो वेरी करेगी पोल्स पे और इक्वेटर में। यू कैन सी इन द पिक्चर, at poles it is about 8 kilometer, and at equator is about 17 kilometer। okay, I hope you all know कि poles और equators क्या हैं। okay, this picture is visible, Yes. and all of you just, ओके, सो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है इक्वेटर में और पोल्स में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या करेगी, वेरी करेगी। ठीक है, तो उसने वैसे भी कहा कि हाइट जो है, क्योंकि ये तो आपका जो ट्रोपोस्फेयर है हर एक चीज में चेंज हो रही है, एंड हाइट इज ऑल्सो वेरिएबल। ओके, इट इज शोइंग द वेरिएशन इन द पोल्स एंड द इक्वेटर। दिस इज द पोल, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, एंड दीज आर द इक्वेटर। सो दोनों में, इक्वेटर में भी और पोल में, ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होगी वो डिफरेंट होगी। Okay, so at poles it is about 8 kilometer, and at equator is about 17 or 18 kilometer। All weather changes takes here। उसने कहा as we go higher in the troposphere therefore the temperature drops। अब क्योंकि उसने कहा कि अर्थ में
क्योंकि ट्रोपोस्फेयर सबसे ज्यादा अर्थ के पास है, सबसे ज्यादा इसमें टेम्परेचर होता है। एज वी गो हायर इन दैट ट्रोपोस्फेयर, जो ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर ग्रेजुअली जो है वो फॉल ड्रॉप होने शुरू हो जाएगा। उसने कहा द टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हर एक लेयर में उसने कहा कि टेम्परेचर जो है इंक्रीजिंग हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी, हाँ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब इसमें आपने देखा टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है। इन द टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर डिक्रीजेस स्टेडली विद इंक्रीजिंग हाइट। ओके, इंक्रीजिंग हाइट के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर विल डिक्रीज। ओके, दिस डाटा यू हैव टू लर्न कि दैट इज फॉर एवरी 160 मीटर ऑफ हाइट। ठीक है, दिस यू हैव टू लर्न कि एवरी, ओके, एवरी 160 मीटर ऑफ हाइट कितना टेम्परेचर जो है डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जितना 160 उसमें एवरी 160 मीटर ऑफ हाइट, हर 165 मीटर ऑफ हाइट पे टेम्परेचर विल डिक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एंड दिस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, 165 मीटर पे, हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल लैप्स रेट। ओके, सो यू हैव टू लर्न कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है। 165 मीटर्स ऑफ हाइट में जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल लैप्स रेट। ओके, एंड हाइट जो है, हाइट ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस, इसका जो टेम्परेचर है दैट इज अ 15 डिग्री, 12 किलोमीटर तक इसका 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो रहता है। ओके, नाउ दिस यू हैव टू लर्न कि 165 मीटर वाली जो है ये, दिस डाटा, दिस इज बेसिकली डाटा दैट यू हैव टू लर्न। The boundary between the troposphere and the stratosphere is called as a tropopause. Tropopause, ठीक है, बाउंड्री उसने कहा दैट जोन सेपरेटिंग, जो जोन सेपरेट कर रहा है ट्रोपोस्फियर को फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज द ट्रोपोपॉज। एंड द एयर टेम्परेचर जो होगा एयर ट्रोपोपॉज पे कितना होगा, 18 डिग्री सेल्सियस। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू राइट टेम्परेचर जो होगा ट्रोपोपॉज में। ओके, आई एम राइटिंग द टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोपॉज दैट यू हैव टू लर्न 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होगा कहाँ पे, ट्रोपोपॉज में। ओके, एंड द टेम्परेचर हियर इज नियरली कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर आगे जो है वो कांस्टेंट रहेगा 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो व्हाट इज द ट्रोपोपॉज, द बाउंड्री बिटवीन द, उसका जोन जो सेपरेट कर रहा है ट्रोपोस्फियर को फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड एज अ ट्रोपोपॉज। और ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। हाँ, देयर इज अ डिफरेंस कि 80 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो इक्वेटर्स पे होगा और 45 डिग्री सेल्सियस होगा ओवर द पोल्स। ओके, okay, next your important layer is the stratosphere. Okay, stratosphere, you know it is the most important layer. Why it is important, because ozone layer is present here. Okay, so now this is a layer that lies above the troposphere. Okay, troposphere के just ऊपर है, it extend up to 50 किलोमीटर from the surface of the earth. ये कितना है करेगी, वो आपका 10 किलोमीटर तक है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर जो है अप टू 50 किलोमीटर। This is a quiet and safe zone for aircraft to fly and there's no disturbances due to weather conditions. Okay, तो this you have to learn कि weather conditions कहाँ पे हो रही हैं, आपके ट्रोपोस्फियर में, यहाँ पे weather changes नहीं है, so इसलिए this is a quiet and safe zone, quiet and safe zone for aircraft to fly because there is no disturbances, कोई भी changes नहीं हो रहे हैं, so disturbance is not here, that's why planes can fly here. इसमें जो है हीट रिलीज होती है, दिस कॉजेज राइज इन टेम्परेचर इन दिस पार्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ओजोन लेयर प्रेजेंट एट स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन लेयर मेनली कॉन्सेंट्रेट होते हैं 15 टू 80 तक नहीं जाती है बट 50-60 तक जाती है। ठीक है, क्योंकि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड 50 तक आपका स्ट्रेटोस्फियर आएगा एंड अबव दैट यू आर हैविंग द मेसोस्फियर, बट 50 से 15 से लेके 50 तक आपकी ओजोन लेयर है, उसके बाद ओजोन लेयर बिल्कुल कम होने स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर कि ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन लेयर एक्ट एज कवर टू ऑब्स्ट्रैक्ट ultraviolet rays from the sun, that already you know, and upper boundary of stratosphere is called as stratopause. But firstly just try to understand, इस लेयर में उसने कहा है कि it extend from 20 to 50 किलोमीटर, आपकी stratosphere extend from 20 to 50 किलोमीटर from the sea level, and
इसके बाद जो है टेम्परेचर इंक्रीजिंग स्लोली विद द इंक्रीज इन द हाइट। अब इसमें टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ओके, उसने कहा ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा था कि वो हाइट के साथ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, ट्रोपोस्फियर में हाइट के साथ टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। बट इन दिस लेयर द टेम्परेचर स्टार्ट्स टू इंक्रीज विद द हाइट। ओके, सो इसमें टेम्परेचर जो है इंक्रीज होना स्टार्ट होगा विद द हाइट। ओके, जस्ट ट्राई टू डिफरेंशिएट, उसमें टेम्परेचर क्या था, डिक्रीज हो रहा था विद हाइट, बट इन दिस द टेम्परेचर स्टार्ट्स टू इंक्रीज, स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद द हाइट। व्हाई? क्योंकि उसने कहा ओजोन लेयर इज प्रेजेंट हियर। ओके, सो ओजोन लेयर, इसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, और ओजोन लेयर की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि ओजोन लेयर क्या करती है, सन की हार्मफुल रेज जो हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। सो ओजोन लेयर जो है प्रिवेंट करेगी अल्ट्रावायलेट रेज को। सो इट एब्जॉर्ब एनर्जी, इट एब्जॉर्ब रेज फ्रॉम द इनकमिंग अल्ट्रावायलेट रेज। सो जिसकी वजह से क्या होता है, विच वार्म्स द स्ट्रेटोस्फेयर, जिससे स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो रेज करेगा। Okay, so that's why temperature is increased here. And important thing is that कि ओजोन लेयर कैसे प्रोटेक्ट करती है, you know कि ओजोन लेयर, what is ozone? Okay, what is ozone? All of you please give me the answer, do you know what is ozone? It is the gas atoms of oxygen O3. हाँ, 3 atoms of oxygen, but just remember कि it is a very important phenomena कि ओजोन जो है कॉन्टिन्यूसली बन भी रही है और डिस्ट्रक्ट भी हो रही है। ओके, बट थिंग इज डैट कि अर्लियर जो था, पहले कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, CFC थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ओजोन लेयर जो थी वो बन भी रही थी और डिस्ट्रक्ट भी हो रही थी। बट नाउ अ डेज बनती कम है लेकिन डिस्ट्रक्ट ज़्यादा होती है। दिस यू हैव टू लर्न कि हाउ ओजोन लेयर इज फॉर्म। ठीक है, ओजोन लेयर आपकी ऑलरेडी आई हैव इन द लास्ट क्लास ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि ओजोन लेयर इज द O3। ओके, ये जो प्रोसेस है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब O2 का मॉलिक्यूल जो है, दिस O2 मॉलिक्यूल व्हेन कंबाइन विद फ्री एक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आपको पता है वैलेंसी जैसे इसकी 2 3 होती है, तो इस ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये इजीली रिएक्ट, ये जो अकेला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो बड़ा रिएक्टिव होता है, जल्दी से ऑक्सीजन से कंबाइन करके O3 बना देता है। ठीक है, अब O3 की फॉर्मेशन यहाँ पे है, बट जस्ट रिमेंबर कि ड्यू टू द CFC, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, व्हेन इट रीचेस टू द अपर एटमॉस्फेयर इट ब्रेक्स इनटू द क्लोरीन, फ्लोरीन एंड द कार्बन, और जो क्लोरीन है इट इज हाईली एफिशिएंट टू ब्रेक द ओजोन लेयर। ठीक है, तो एक्टिव क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो वो ब्रेक करेगा O3 को O2 प्लस O में। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, ओजोन बनती भी जा रही है, यहाँ से देखो ओजोन बनती भी जा रही है और यहाँ से ब्रेक भी होती जा रही है ड्यू टू CFC। बट थिंग इज दैट कि पहले ब्रेक कम होती थी, दोनों प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलते थे, ब्रेक भी हो रही थी, बन भी रही थी। बट नाउ अ डेज यहाँ से ब्रेक ज्यादा हो रही है क्योंकि मोर एंड मोर CFC इज गोइंग टू द अपर एटमॉस्फेयर। ओके, बट फॉर्मेशन इज लेस, दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ओके, ओके, नेक्स्ट उसने कहा अपर बाउंड्री ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड, upper boundary of stratosphere is called as a stratopause that separate the stratosphere from the mesosphere. Now in the lower part of the stratosphere the temperature is constant but it increases in the upper part. This is also you have seen कि stratosphere में क्या होगा, lower part में temperature constant होगा but upper part में ozone present है तो it increases in the upper part. For about 30 km from the surface of the earth the temperature remains steady. The ultraviolet rays from the sun absorb the oxygen molecule and split them into oxygen atom which aid the formation of ozone. This you know कि उसने कहा ultraviolet rays from the sun absorb the ozone molecule. जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सन से वो ओजोन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। ओके, एब्जॉर्ब मीन्स कि द O2 मॉलिक्यूल व्हेन दे एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं दे ब्रेक दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दिस इज आल्सो फिनोमेना कि ऑक्सीजन O2 भी जो है वो ब्रेक होते जा रहा है, सिर्फ O3 ब्रेक नहीं हो रहा, O2 इज आल्सो। ओके, सो अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये दे स्प्लिट कर रही हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन एटम्स में। ओके, सो विच एड द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। सो ये जब दो ब्रेक होंगे तो दिस एक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन विद अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देन फॉर्म द ऑक्सीजन। सो हर एक चीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है अल्ट्रावायलेट रेज, दोनों वेज में, अच्छे वे में भी क्योंकि ऑक्सीजन को ब्रेक करके ओजोन की फॉर्मेशन भी कर रहा है, बट इन द सेकंड वे यू कैन से कि CFC जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर जा रही है तो अल्ट्रावायलेट रेज व्हेन फॉल्स ऑन द CFC, CFC जो है वो
एक कंबाइंड फॉर्म में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बट व्हेन इट ब्रेक इनटू द क्लोरीन फ्लोरीन एंड कार्बन तो देन इट बिकम्स एक्टिव, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन जो है वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है ब्रेक करने के लिए। ओके यू नो ना कि जो नेगेटिव चार्ज होता है मीन्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ओके जैसे आपका ऑक्सीजन है तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मीन्स कि उसके अंदर ज्यादा एफिशिएंसी होती है दूसरों के साथ कंबाइन करने की, इसलिए इसको एक्टिव बोलते हैं। वेन एवर एनी मॉलिक्यूल हैविंग द नेगेटिव चार्ज तो वो आपका क्या होता है, हैविंग द कैपेसिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ओके नाउ नेक्स्ट यू आर हैविंग द ओके सो स्ट्रेटोस्फेयर जो है, स्ट्रेटोस्फेयर में 70% जो है गैसेस होती हैं और बाकी पार्टिकल्स इसमें हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द गैसेस कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी एटमॉस्फेयर में। Now, then you are having the mesosphere. This is a middle layer. Meso means middle above the stratosphere. It just wait. Okay. Okay, mesosphere it extends from 50 kilometer to 80 kilometer above the sea level. The temperature is decreases with the increasing height. अब यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग हाइट, क्योंकि अब पीछे वाले में तो आपने देखा यू हैव सीन कि ओजोन लेयर इज देयर, बट इन दिस केस दिस इज इम्पोर्टेंट कि आपने हर लेयर में देखना है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बेसिकली लेयर्स आर बेसिकली फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर कि टेम्परेचर कैसा है, सो यू हैव टू सी द वेरिएशन इन द टेम्परेचर इन द डिफरेंट लेयर्स। ओके लर्न द हाइट ऑल्सो, यहाँ पे कितनी है 50 to 80 किलोमीटर, पीछे वाली कितनी थी 50 किलोमीटर तक। द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट इन मेसोस्फीयर। ओके एंड इसमें जो है 99% ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है 99% जो है इज प्रेजेंट द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर कंबाइंड, मतलब 99% जो आपकी गैसेस हैं वो ट्रोपोस्फियर में और स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होंगी, और बाकी जो रिमेनिंग गैसेस हैं वो फिर बाकी लेयर्स में आ जाएंगी। 99% ट्रोपोस्फियर में और स्ट्रेटोस्फियर में है। ओके देन बाकी जो रिमेनिंग जो आपका 0.1% बचेगा वो फिर आपकी आ जाएंगी मेसोस्फियर में। ओके एंड अमाउंट ऑफ ओजोन, हाँ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि अमाउंट ऑफ ओजोन हियर इज वेरी स्मॉल। मैंने आपको पहले ही बोला कि 50 किलोमीटर तक आपकी ओजोन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है स्ट्रेटोस्फियर में, बट यहाँ पे भी ओजोन प्रेजेंट होगी बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ओके सो यहाँ पे जो टेम्परेचर है पहले क्या होता है, टेम्परेचर जो है बिगनिंग में क्या होगा इंक्रीज होगा, थोड़ी सी जोन प्रेजेंट होगी, बट जब आगे चलोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेसोस्फीयर में अमाउंट ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट बट इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट, सो दैट्स वाई बिगनिंग में टेम्परेचर जो है वो क्या होगा इंक्रीज होगा। ओके बट विद इंक्रीजिंग हाइट इट विल डिक्रीज। ओके एंड उसने क्या बिगन्स टू ड्रॉप, टेम्परेचर धीरे धीरे जो है जैसे वो ऊपर पहुंचेगा तो टेम्परेचर वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि मेसोस्फीयर में जो मीटियोर्स वगैरह हैं हीट एंड विजिबल, जो मीटियोर्स वगैरह होते हैं वो हमें यहाँ पे मेसोस्फीयर में विजिबल होते हैं, यहीं पे वो ब्रेक होते हैं, उसमें हीट्स अप एंड दे आर विजिबल इन दिस लेयर। ओके नाउ यू आर हैविंग द थर्मोस्फीयर। आर यू ओके नाउ थर्मोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर्स तक चलेगा, ठीक है। एंड उसने क्या अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज द आइनोस्फीयर, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग हाइट। अब यहाँ पे क्योंकि कोई भी गैसेस वगैरह कुछ नहीं है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है थर्मोस्फीयर में फाइनली जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग with increasing height, and due to ionization process the temperature in this part increases considerably। अब इसमें क्योंकि आइंस प्रेजेंट है तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या करता है इंक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग हाइट। ओके नाउ आयोनाइजेशन ऑकर मोर ड्यूरिंग द डे एंड जोन इज एक्टिव इनएक्टिव ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। आयोनाइजेशन क्योंकि आयोनाइजेशन के लिए भी उसने बोला कि जो डे के टाइम आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी, आइंस फॉर्मेशन डे के टाइम जो है वो ज़्यादा होती है, एंड दिस जोन इज इनएक्टिव ड्यूरिंग नाइट, नाइट के टाइम इतनी एक्टिव प्रोसेस नहीं होता ये।
and the short wave in the electromagnetic spectrum like x rays cause ionization. अब ionization क्या होती है? आयन फॉर्मेशन. जैसे आपको मैंने बोला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो वो ब्रेक हो रही है क्लोरीन में, फ्लोरीन और कार्बन में. ओके, यूजली वो कंपाउंड है. जैसे आप वाटर में देखते हो H2O, H2O इज ए कंपाउंड, बट जब आप वाटर को ब्रेक करोगे तो इट फॉर्म हाइड्रोजन आइन एंड द ऑक्सीजन आइन, दैट इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन. इन द सेम वे जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करोगे तो यू विल गेट द कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, तो दैट इज द आयोनाइजेशन. ओके, सो आयोनाइजेशन किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे एक्सरेज हैं, दैट कॉज द आयोनाइजेशन. ओके, आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स. ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है. ड्यूरिंग डे टाइम द आइनोस्फीयर इज वेल डेवलप्ड एंड इट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स इफेक्टिवली. ओके, सो डे टाइम पे जो आइनोस्फीयर होगा वो वेल डेवलप्ड होगा और ये क्या करेगा? रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करेगा. बट जिस फोकस की आयोनाइजेशन क्या है? ओके, सो आइनोस्फीयर क्या है? जहाँ पे आइंस प्रेजेंट होते हैं. आइंस मीन्स हैविंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज. जो आपको पता है केटाइंस और एनाइंस होते हैं. एंड और जो आइंस होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव, स्पेशली जो नेगेटिव चार्ज आइंस हैं. नाउ थर्मोस्फीयर is divided into two layer, the ionosphere and the exosphere. Okay, ionosphere क्या है? that अब ionosphere की हाइट कितनी होगी? 82. दिस यू हैव टू लर्न. ठीक है, 80 to 640 किलोमीटर तक. ओके, ionosphere. but peculiarity, number of electrically charged ion particles are concentrated in this layer and that's why it is called as the ionosphere. This you have to learn. ionization is there, particles are there, electrically charged particle. Okay, electrically charged particle भी वही होंगे जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं. and learn the height 80 to 640 kilometer. And most important, radio waves are reflected in this layer because of the concentration of iron particles. क्योंकि अब iron particles या ions present हैं तो radio waves जो हैं वो यहाँ पे reflect होती हैं. Then you are having the exosphere. uh, is the uppermost layer of the thermosphere. It is above 640. ठीक है, 80 to 640 तक आपका आ जाएगा ionosphere. और 640 से ऊपर जो आपका ओपन स्पेस है. इन दिस लेयर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग हाइट. तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या हो रहा है? अब आगे तो आपको पता है ये स्पेस में जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ साथ क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग हाइट. ओके, सो नाउ दिस इज द कंक्लूजन. द अर्थ इज यूनिक बिकॉज इट हैज इट्स लाइफ. अब आपको पता है कि लाइफ क्यों है? क्योंकि हर एक चीज इसमें प्रेजेंट है. ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है जो आपके लिए आपको चाहिए होती है. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट देयर. ठीक है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस. दैट यू नो कि नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है. बट एक ही चीज है कि नाइट्रोजन जो है वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है और प्लांट्स यूजली, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लांट्स, दैट यू नो. ठीक है, तो हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम चीज ले रहे हैं, दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट ओनली. सो प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं. बट थिंग इज दैट कि वो जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है अबंडेंस में, क्योंकि बाकी गैसेस भी है ना. ऑक्सीजन तो आपको पता है आप कैसे यूज कर रहे हो. कार्बन डाइऑक्साइड यू नो कि प्लांट्स आर यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. देन कम्स द नाइट्रोजन जो हमारी अबंडेंस में गैस प्रेजेंट है 78%. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट थिंग इज दैट कि इट इज प्रेजेंट इन गैसेस फॉर्म और प्लांट उस गैसेस फॉर्म्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते. सो दैट वी विल डिस्कस कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे. नाइट्रोजन साइकिल जब आप आगे पढ़ोगे ना, कि नाइट्रोजन जो है अबंडेंस में प्रेजेंट होती है, बट नाइट्रोजन is utilized by the plant only with the help of the bacteria that is present in the soil. ठीक है, वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को soluble फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. फिर प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं एंड देन दे फॉर्म द प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ दैट नाइट्रोजन. तो वहां से वो प्लांट प्रोटीन फिर एनिमल प्रोटीन बनते हैं. Okay, but thing is that I'm telling you about the different type of gases, that is the carbon dioxide, oxygen and nitrogen. That is very very important. That's why we are having a proper atmosphere. That's why we are living there. इसलिए अर्थ का एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर अर्थ में. लाइफ इज क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड. The atmosphere is the envelope of air around the earth held in place because of the earth's gravity, and atmosphere extends from the surface of the earth to a height of approximately 1600 kilometer where it merges into space. ठीक है, 1600 किलोमीटर तक होगा, उसके बाद ये मर्ज हो जाता है स्पेस के साथ. Okay, so is this clear? Now our next topic is the hydrosphere, but that will start in the next class only. So now please tell me if you want to anything, want to ask regarding this topic, if any problem is there.
Yes, everyone, please unmute. So all of you just every time just be present in the class, okay? Okay.